Hello students, today we are doing chapter 3 of the book Vistas, Journey to the End of the Earth, written by Tishani Doshi. First of all, a little bit about the writer. Tishani Doshi was born in the present day Madras in 1975. She had written a lot of books and her books on poetry and fiction are published and are famous all over the world. Currently she is living on a beach between two fishing villages in Tamil Nadu. Now a little bit about the chapter also. This chapter, Journey to the End of the Earth, is about educational journey to Antarctica undertaken by groups of high school students who want to learn about the real impact of global warming and the future of the earth. The writer Tishani Doshi was also among them, and she was very much concerned when she saw Antarctica. She was very much concerned about the environment. Will the environment survive if it goes on melting like this? If the ice sheets goes on melting, or if the global temperature is increasing at a great speed, will our earth survive? It is a major concern in this chapter also. So we are starting the chapter. Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the Academic Shkolasky, heading toward the coldest, driest, windiest continent in the world, which is Antarctica. Now the writer is saying कि वो अपने आप को कहाँ पाती है? रशियन रिसर्च वेसल पे एकेडमिक शोकाल्स्की, और जो एंटार्क्टिका की तरफ जा रहा है. माई जर्नी बिगैन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास. मद्रास से स्टार्ट होती है उसकी जर्नी, एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 check points, 3 bodies of water, and at least as many ecospheres. So she has crossed, the research vessel has crossed 9 time zones, 6 check points, 3 bodies of water, and इतने ही ecospheres also. By the time I actually set foot on the Antarctic continent, and she is saying कि जब हमने Antarctic continent पे हम पहुँचे वहाँ पर, they had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. कि लगातार कंटिन्यूस कार से, फिर एरोप्लेन से, एंड फिर शिप से 100 आवर्स उनको कंटिन्यूस हो चुके थे. सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग एंटार्क्टिकाज एक्सपेंस वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन वाज रिलीफ. तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था दैट वाज ऑफ रिलीफ, कि वो मैंने ब्लू होराइजन देखा. जो होराइजन क्या होता है? जहाँ पे हमें लगता है जिस पॉइंट पे कि लैंड और जो हमारा आसमान है, स्काई है, वो मिल रहे हैं. फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, एंड आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड. इतना ज़्यादा उसको वंडरस फील हो रहा था, सरप्राइज्ड फील हो रहा था. वंडर एट इट्स इमेंसिटी, कि कितना बड़ा है ये एंटार्क्टिका. इट्स आइसोलेशन सबसे अलग है, बट मेनली एट हाउ there could ever been a time when India and Antarctica were part of the same land mass. सबसे ज़्यादा उसको सरप्राइजिंग क्या लग रहा था ये सोचकर कि क्या कभी ये एंटार्क्टिका विच इज़ आइसोलेटेड नाउ फ्रॉम द होल वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड से अब अलग होके साउथ हेमिस्फीयर में ये है इस टाइम लोकेटेड है, क्या ये कभी इंडिया के साथ जुड़ा हुआ था? इफ़ इट वॉज a big landmass, if it was a part of the big landmass to which India also belonged. So she was very much surprised by thinking so. So part of history, 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent. So she was telling about this कि 650 million years ago ये एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था. ये सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, एमलगमेटेड मीन्स बहुत ज़्यादा बड़ा, मिक्स्ड, काफ़ी सारे लैंड्स मिक्स थे इसमें, एंड इट वाज नोन एज गोंडवाना लैंड. डिड इंडीड एग्जिस्ट, और ये था, रियलिटी में था उस टाइम. सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका. तो आज जहाँ पे एंटार्क्टिका है उसी वहाँ पर ही ये सारा का सारा गोंडवाना लैंड हुआ करता था. थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट दैन. ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन. सो अभी ह्यूमंस भी धरती पर नहीं आए थे, एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर एट दैट टाइम, होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा एंड फोना भी काफ़ी उस टाइम काफ़ी ज़्यादा रिच क्वांटिटी में थी. For 500 million years, Gondwana thrived.
मतलब बड़ा गोंडवाना लैंड जो था that remained near about 500 million years, but around the time when the dinosaurs were wiped out. लेकिन उस टाइम जब डायनासोर्स ख़त्म होने लगे एंड द एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडर वे, और मैमल्स जो थे, मैमल्स कौन होते हैं, दैट गिव बर्थ टू यंग वंस. सो वे एनिमल्स जो थे आने लगे, उनका जो स्टेप था वो अब धरती पर पड़ने लगा. द लैंड मास वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट टू कंट्रीज. एट दैट टाइम जो ये लैंड मास था, ये पूरा गोंडवाना लैंड जो था ये अब डिवाइड होना स्टार्ट हो गया. दैट सेपरेटेड इनटू कंट्रीज शेपिंग द ग्लोब एज मच वी नो इट टुडे. और आज की कंडीशंस जो हैं कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है, इस तरह का हमारा जो शेप थी वो ग्लोब की बनती चली गई. To visit Antarctica now is to be a part of that history. So if we want to visit Antarctica, we are knowing that history also by that, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading, कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा फ्यूचर क्या होगा. It's to understand the significance of Cordilleran faults and pre-Cambrian granite shields, कि अगर हम एंटार्क्टिका को देखने जाते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम जो पुराने जो कॉर्डिलेरन फॉल्ट्स थे उस टाइम, जो फॉल्ट्स हुआ करते थे धरती के, एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स ऑल्सो ऑफ विच दिस एनवायरनमेंट और दिस अर्थ वाज फॉर्म्ड. ओजोन एंड कार्बन, इट्स एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, तो हम उन सभी को स्टडी कर पाएंगे. When you think about all that can happen in a million years, और अगर हम ये सोचें कि ये सारा एक 1 million years में, कुछ million years में ही हो गया, it can get pretty mind boggling. तो एकदम हमारा दिमाग हिल जाएगा, एकदम confused हो जाएंगे, समझ भी नहीं आएगा कि क्या हुआ है. Imagine India pushing northwards. Now you have read about this in I think 9th class also. इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, जो करंट थे उसकी वजह से इंडिया जो है नॉर्थवर्ड्स की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, एशिया की तरफ खिसक रहा है वो, टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज, और वहाँ पे जाके वो हिमालयाज बनाता है. साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका. साउथ अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिका की तरफ ड्रिफ्ट अप हो रहा है, ओपनिंग ऑफ द ड्रेक पैसेज एंड टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट. तो ड्रेक पैसेज स्टार्ट होता है बनना, और उससे जो करंट्स वगैरह, कोल्ड करंट्स जो है पानी में बनते हैं. कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रिजिड, और इससे क्या होता है, इंडिया जो है नॉर्थवर्ड्स मूव हो रहा है, साउथ अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिका की तरफ मूव हो रहा है, और एंटार्क्टिका जो है वो एक अकेला बॉटम ऑफ द वर्ल्ड साउथ में वो रह गया है. कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रिजिड, एक फ्रिजिड बिल्कुल कोल्ड, डेसोलेट सबसे अकेला, वो नीचे सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ रह गया. फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, नाउ त्रिशानी दो शी इज सेइंग अबाउट हर सेल्फ, कि जो सन की पूजा करने वाली मैं, साउथ इंडियन मेरे जैसी, 2 weeks इन अ प्लेस, और मैं कहाँ पर हूँ, ऐसे प्लेस पर हूँ 2 weeks के लिए, वेयर 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड, इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट, कि जहाँ पे अर्थ का टोटल 90% आइस वॉल्यूम, पूरी अर्थ का आइस वॉल्यूम जो है, आइस जो है 90% वो वहाँ पे अंटार्कटिका में है. एंड अगर मैं इसके बारे में सोचती हूँ, दैट इज़ अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट, एकदम मुझे चिल्ड फील होता है ये, नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस, कहते हैं कि मेरी फिजिकल बॉडी को नहीं बट मेरी इमेजिनेशन को भी. इट्स लाइक वॉकिंग इन टू अ जायंट पिंग पोंग बॉल. और ये ऐसा लगता है जैसे मैं किसी पिंग पोंग बॉल में हूँ, डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, जहाँ पे और कोई ह्यूमंस नहीं हैं, नो ट्रीज, नो बिलबोर्ड्स, नो बिल्डिंग्स. यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव. इट मीन्स जैसे तुम सब भूल जाते हो कि तुम्हें कोई तुम ह्यूमन बीइंग हो, कोई अर्थ की कोई भी जो इंडिकेशंस होते हैं, यू लूज ऑल दैट एंड टाइम ऑल्सो, और तुम टाइम का भी फील जो है यहाँ पर लॉस्ट कर जाते हो, भूल जाते हो. The visual scale ranges from the microscopic to the mighty. यहाँ पे सिर्फ क्या दिखता है, जो दूर दूर तक दिखाई देता है, माइक्रोस्कोप्स, जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, एंड उससे माइटी तक पहुँच जाते हैं. इट मीन्स छोटे से लेके मिजिज, बिल्कुल छोटे छोटे कीड़े जो हैं, मिजिज एंड माइट्स, और उनसे लेकर ब्लू वेल्स एंड आइसबर्ग्स.
ब्लू व्हेल्स तक, मतलब छोटे से लेके बड़े एनिमल्स तक यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं. बट नो ह्यूमन बीइंग इज देयर, नो बिल्डिंग्स आर देयर, इट इज़ डिवाइड ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स. एंड आइसबर्ग्स दैट आर एज बिग एज कंट्रीज, जो सबसे बड़ी आइसबर्ग जो रिकॉर्ड की गई थी दैट वाज द साइज ऑफ बेल्जियम. बेल्जियम फुल कंट्री के साइज़ की ये रिकॉर्ड की गई थी. डेज गो ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट. लगातार दिन पे दिन बीते जाते हैं 24 आवर्स के. एंड अ यूबिक्टस साइलेंस, और जो मतलब परमानेंट एवरीवेयर, यूबिक्टस मीन्स ऑल ओवर देयर वॉज अ कंप्लीट साइलेंस uninterrupted only by the occasional avalanche और carving ice sheet. और सिर्फ ये जो साइलेंस है ये कब इंटरप्ट होती है, कब ये एकदम यहाँ पे थोड़ी सी वॉइस आती है, जब कोई एवलांच होता है, कोई आइस शीट जो है वो टूटती है, या अपने मेन उससे तड़कने की उसकी आवाज़ आती है. कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, इट मीन्स अदरवाइज दैट इज कॉन्सिक्रेट्स वैसे तो होता है प्योरीफाइज द प्लेस, इट मीन्स बाकी मतलब ये यहाँ पे कंप्लीट साइलेंस है. It's an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history. So ये एक ऐसी फीलिंग है जो आपको मतलब उस टाइम पे आपको to place yourself in the context of the Earth's geological history, जो आपको वहाँ की अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री में आपको पहुँचा देगी. एंड फॉर ह्यूमन्स द प्रोग्नोसिस इजंट गुड. और ह्यूमन्स के लिए जो ये प्रोग्नोसिस है, जो ये यू कैन से कंक्लूजन है, इट इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है इसका रिजल्ट. नाउ वी आर कमिंग टू ह्यूमन इम्पैक्ट. ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर अ पाल्ट्री 12,000 ईयर्स. तो ह्यूमन सिविलाइजेशन जो स्टार्ट हुई है वो उसको अभी सिर्फ छोटा सा, पाल्ट्री होता है स्मॉल सम, ओनली 12,000 ईयर्स ही हुए हैं. बेयरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन जियोलॉजिकल क्लॉक. और अगर जियोलॉजिकल क्लॉक को काउंट किया जाए तो उस पर अभी कुछ ही सेकेंड्स हुए एक तरह से, जो हमारी पूरे अर्थ की टाइमिंग्स को नोट किया जाए. सो ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड ओनली फॉर अ स्मॉल टाइम, सिर्फ थोड़े से सेकेंड्स ही हुए हैं. 12,000 आर ओनली लाइक अ स्मॉल फ्यू सेकेंड्स ओनली. इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस. रकस होता है हलचल मचा देना. और इतने थोड़े टाइम में ही हमने इस धरती पर एक हलचल मचा दी है. किस तरह की हलचल मचा दी है? एचिंग आर डोमिनेंस और ओवर नेचर. हम डिमांड कर रहे हैं नेचर पर अपनी डोमिनेंस की. हमने अपनी डोमिनेंस शो कर दी है विद आवर विलेजेस, टाउन्स, सिटीज़ एंड मेगा सिटीज़. विलेजेस बना के, देन टाउन्स बना के, देन सिटीज़ एंड देन मेगा सिटीज़. सो वी आर जस्ट डोमिनेटिंग दिस नेचर. The rapid increase of human populations has left us battling with other species for limited resources. और जो ये ह्यूमन पॉपुलेशंस इंक्रीज़ होती जा रही हैं, इसकी वजह से हमारी जो बैटल है, हमारी लड़ाई जो है बाकी स्पीसीज़ के साथ स्टार्ट हो चुकी है. फॉर दिस लिमिटेड रिसोर्सेज, इट मीन्स वी वांट दिस रिसोर्सेज फॉर आवरसेल्व्स. एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. और जो ये लगातार कंटिन्यूअस नॉट एंडिंग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, हैज़ नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड. जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड पर कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लैंकेट जो है बन गई है, विच इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर. एंड दैट हैज़ क्रिएटेड द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर. Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. At present also, so what is the hottest issue nowadays also? That is the climate change. Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? So मतलब जो डिबेट इशू है वो क्या है कि क्या ये वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट है, पूरा एंटार्क्टिका जो है इसकी आइस शीट्स क्या पूरी मेल्ट हो जाएंगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट्स बी डिस्टर्प्टेड? जो उसके आइस शीट्स के पिघलने से क्या होगा? गल्फ स्ट्रीम के ओशन करंट्स भी डिस्टर्ब होंगे, उनमें भी चेंज आएगा. विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड? और जो हम सोचते हैं, जो हमें पता है, क्या यही वो एंड है? क्या इसी तरह से एंड होगा? मे बी और मे बी नॉट. हो भी सकता है और नहीं भी. Either way, Antarctica is a crucial element in this debate. It is a main element in this debate. Antarctica is the main point to be discussed, not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population. ये इसलिए नहीं है एक मेजर डिबेट पॉइंट कि
ये सिर्फ यही एक ऐसा प्लेस है दुनिया में जहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन कभी नहीं आई, एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस रिस्पेक्ट। और इसीलिए सिर्फ ये एज इट इज़ प्रिस्टीन होते हैं जो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में हो, जो कभी भी चेंज नहीं हुआ हो। तो इसीलिए ये सिर्फ कि एक अनचेंज्ड है, ओरिजिनल कंडीशन में है, खाली इसीलिए एंटार्क्टिका एक मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट इसके साथ ही साथ but more importantly because it holds in its ice cores 500,000-year-old carbon records trapped in its layer of ice. But the main point is that कि इसके अंदर, इसकी आइस कोर्स के अंदर 500,000-year-old कार्बन रिकॉर्ड्स भी है इसकी लेयर्स में. दैट्स वाई ऑल्सो इट इज़ वेरी मच important for the debate. If we want to study and examine the earth past, present and future, Antarctica is the place to go. It means कि अगर हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की स्टडी करनी है, सो ओनली एंटार्क्टिका इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो. Now students on ice, the program I was working with on the Shokalski aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. तो जो ये प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन आइस जिसके ऊपर आई वॉज वर्किंग, इट मीन्स द ऑथर तिशानी दोशी वॉज ऑल्सो वर्किंग विद इट ऑन शोकाल्स्की रिसर्च वेसल पे. तो इसका यही एम है, ये हाई स्कूल स्टूडेंट्स को लेकर जाता है टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड और वहाँ पे जाके इनको अपॉर्चुनिटीज़ देता है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, सो दैट दे कुड ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द प्लानट अर्थ, कि वो प्लानट अर्थ के बारे में समझ सकें. एंड दिस प्रोग्राम हैज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, कि ये 6 years से ये प्रोग्राम चल रहा है. हेडेड बाय, कौन इसका लीडर है, कैनेडियन है एक, जॉफ ग्रीन, who got tired of courting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. So जब ये स्टार्ट हुआ था 6 years पहले, तो ये जॉफ ग्रीन जो थे ये सेलिब्रिटीज़ को एंड रिटायर्ड रिचर पर्सनस को लेकर जाते थे इस प्रोग्राम पे, इस वेसल पे. एंड दीज रिचर पर्सनस वर ओनली क्यूरियोसिटी सीकर्स, अपनी क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने के लिए कि एक एंक्शियस थे वो, दे ओनली वांट टू सी the end of the world, the corners of the world. So that's why they only go on this research vessel. But Canadian Geoff Green was tired taking them, so he started taking the high school students. With students on ice, what was the aim of taking these high school students? He is telling about, Tishani Doshi is telling here, with students on ice, he offers the future generation of policy makers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act. कि जॉफ ग्रीन का मेन एम क्या था उस टाइम पे स्टूडेंट्स को लेकर जाने का, कि उसने वो पॉलिसी मेकर्स दिए, उनको एक ऑफ़र दी, अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट दैट एज, जिस एज में, एक टीनेज में जो स्टूडेंट्स दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, वो एब्जॉर्ब करने के लिए, नई चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए, लर्न करने के लिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्ट करने के लिए रेडी रहते हैं. तो ऐसे स्टूडेंट्स को लेकर जाना ही उन जो मिशन था दैट वाज अ सक्सेसफुल वन. द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज़ बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट. और जो मेन रीज़न था इस प्रोग्राम का सक्सेसफुल होने का, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल. क्या मेन रीज़न था, कि साउथ पोल पर जाना और उससे अफेक्ट ना होना, दैट इज़ इम्पॉसिबल. इट्स ईजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कम्फर्ट जोन ऑफ योर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. बहुत ईजी है अपने घरों में बैठकर, अपने कम्फर्ट जोन मीन्स अपने घरों में बैठकर, जहाँ पर तुम बड़े ऐशो आराम के साथ बैठे हो एंड यू आर टॉकिंग अबाउट दिस आइस कैप्स मेल्टिंग एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, बहुत ईजी है बोलना इनके बारे में. बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, लेकिन जब तुम अपनी आइज से देखते हो उनको पिघलता हुआ, कम होता हुआ, एंड आइस शेल्स कोलैप्सिंग, और आइस शेल्स को फिनिश होता हुआ, एंड अप होता हुआ, देन यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल. तब तुम्हें उस ग्लोबल वार्मिंग के थ्रेट के बारे में रियलिटी का पता चलता है.
Antarctica, because of our simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. सो अंटार्कटिका, जिसका कि बिल्कुल सिंपल सा इकोसिस्टम है, कोई बायोडाइवर्सिटीज़ भी नहीं है यहाँ पे, सो इट इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी कि छोटे से चेंजेस भी एनवायरनमेंट में उनका रिजल्ट क्या हो सकता है, कैन हैव बिग रिपरकशंस, कितना बड़ा रिजल्ट हो सकता है. सो वन एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि ओके वी कैन टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन. हम माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन ही लेते हैं, सिर्फ उसी का एग्जांपल लेते हैं. फाइटोप्लैंक्टन इज़ अ ग्रास जो सी में ग्रो करती है. Those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. वो वहाँ पे ग्रो भी करती है और पूरी फूड चेन, पूरे सदर्न ओशन की एक पूरी की पूरी फूड चेन बनाती है. These single celled plants use the sun's energy, सन एनर्जी को यूज़ करके कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट of process called photosynthesis. So photosynthesis जो है that you know about photosynthesis. photosynthesis के थ्रू जो ये फूड वगैरह सप्लाई करते हैं. साइंटिस्ट वार्न दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर, और साइंटिस्ट ने वार्निंग भी दी है कि अगर ओजोन लेयर में थोड़ा सा भी और ज़्यादा प्रॉब्लम आई, और ज़्यादा डिप्लीशन हुई ओजोन लेयर की, कम हुई है लेयर, दैट विल अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स. जो वो फाइटोप्लैंक्टन्स का जो बनना है, वो फूड्स सप्लाई जो करना है, वो भी ख़त्म होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन. उससे क्या होगा कि जो फूड चेन है दैट विल ऑल्सो डिसरप्ट, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल ऑल्सो दैट विल ऑल्सो डिसरप्ट. इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, सो पैरेबल मीन्स दिस यू कैन से कंपैरिजन, जो फाइटोप्लैंक्टन का कंपैरिजन किया गया है. देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफोर फॉर एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस के लिए भी एक ग्रेट कंपैरिजन है यहाँ पे, एंड दिस इज वन लाइन इज देयर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट tells us about the great impact of this environmental system, and it says take care of the small things and the big things will fall into place. छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे, बड़ी चीज़ें अपने आप अपना प्लेस बना लेंगी. लाइक दैट कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं तो बड़ी चीज़ें, जो पूरी की पूरी मरीन लाइफ है, वो सर्वाइव कर रही है. इसी एग्जांपल के थ्रू ही बाकी सारी जगह पर भी फिट बैठता है कि छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल know its place, will find its place. So my Antarctic experience was full of such epiphanies. तो तिशानी दोशी saying कि मेरा जो ये एक्सपीरियंस था, ये काफ़ी सारे मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस से भरा हुआ था. एपिफेनीज क्या होता है? मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस. बट द बेस्ट अकर जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल एट 65.55 डिग्रीज साउथ. लेकिन मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कहाँ पे था? जब हम थोड़ा सा अंटार्कटिक सर्कल के सिर्फ इतना सा ही डिस्टेंस पर 65.55 डिग्रीज पर रह गए थे. Shukalsky had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and the Tadpole Island. तो जो हमारा रिसर्च वेसल था, ये बता रही हैं तिशानी दोशी कि हमारा रिसर्च वेसल पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड के बीच में हैड मैनेज टू वेज, उसको काटता हुआ बीच में जाके वो रुक गया था, पहुंच गया था आइस को काटता हुआ. एंड नाउ इट वाज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, और अब इसके आगे वो नहीं जा पा रहा था. सो पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड को काट के, उसके आइस शीट्स को काट के, ये हमारा जो रिसर्च वेसल है वो बीच में पहुंच गया था. सो नाउ आगे ये नहीं जा पा रहा है, प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर. द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड. तो कैप्टन ने डिसाइड किया कि हम वापस चलते हैं एंड head back north. But before we did, we were all instructed to climb down the gangplank. लेकिन उससे पहले हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई कि तुम गैंगप्लैंक से नीचे उतरो. What is a gangplank? वुडन बोर्ड होता है ये, जिससे शिप से नीचे ज़मीन पर उतरा जाता है. सो उस गैंगप्लैंक की हेल्प से नीचे उतरो एंड वॉक ऑन द ओशन, और ओशन के ऊपर चलो. एंड ओशन के ऊपर कैसे चलेंगे? बिकॉज इट वॉज ऑल कंप्लीट आइस, ये सारी की सारी पूरी आइस थी. सो देयर वी वर, all 52 of us, 52 people were there on that vessel, kitted out in Gore-Tex and glares. Kitted out means special clothes थे जो हमने पहने हुए थे. Gore-Tex is the name of that cloth. उस फैब्रिक का नाम है Gore-Tex, एंड ये एक तरह का ऐसा फैब्रिक है जो एयर वगैरह को
अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। सिंथेटिक वाटरप्रूफ टाइप क्लॉथ है, ये फैब्रिक है। वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस, ग्लेयर्स शाइन करते हुए कपड़े थे ये, एंड वी वर वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस, और हम एक ऐसी शार्प वाइटनेस पे, किस वाइटनेस पे चल रहे थे? आइस पे। दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, और दूर दूर तक ये वाइटनेस ही फैली हुई थी। अंडरनीथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक, हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर थिक आइस पैक, आइस शीट्स थी, और उसके नीचे अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर। इन द पेरीफेरी क्रेबिएटर सील्स वर स्ट्रेचिंग, पेरीफेरी होता है नियर बाय एरिया, और पास में ही क्रेबिएटर सील्स जो थी वो अपने आप को स्ट्रेचिंग में सनलाइट में वो अपने आप को पूरा अच्छे से सन बाथ एक तरह से ले रही थी, एंड सनिंग देमसेल्व्स ऑन आइस फ्लोर्स मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ अ बैनियन ट्री, जैसे स्ट्रे डॉग्स होते हैं बैनियन ट्री के नीचे बैठे होते हैं, अपने आप को सुस्ता रहे होते हैं, इसी तरह से ये भी आइस शीट्स पर बैठी हुई सन बाथ ले रही थी। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवल्यूशन, और एकदम से इससे भी एक रिवीलेशन होता है, इट मीन्स एक सडन आइडिया माइंड में आता है। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई है। 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet। और मैंने इतना सारा टाइम जोन्स का क्या मतलब है? जो हर कंट्री के बाद, कुछ कंट्रीज़ के बाद या कुछ एरियाज़ के बाद जो टाइम डिफरेंस आता है, दैट इज़ 9 time zones। सो इतने सारे इकोस्फीयर्स के बाद आई वॉज स्टिल वंडरिंग कि ब्यूटी ने, प्लैनेट ने अपना जो बैलेंस बनाया हुआ है कितना वंडरस है, वंडरफुल है। सो तिशानी दोषी वॉज वंडरिंग अबाउट दैट ब्यूटी ऑफ बैलेंस। हाउ वुड इट बी इफ एंटार्क्टिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस? नाउ एक थ्रेट है जो उसके माइंड में आ रहा है कि अगर इतनी ब्यूटी कैसे होगी अगर एंटार्क्टिका फिर से पहले की ही तरह, दैट इट वॉन्स यूज टू बी, पहले की ही तरह वार्म प्लेस बन जाए, गर्म हो जाए। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम इसे देखने के लिए होंगे? और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमल्स एंड वूली राइनोस, या हम भी उसी रास्ते पर चले जाएंगे, वो डायनासोर्स, मैमथ एंड वूली राइनोस वापस आ जाएंगे? हुज टू से, कौन जाने। But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a billion years, but what a difference a day makes. So she is thinking about that कि 2 weeks यहाँ पे spend करने के बाद और उन teenagers के साथ spend करने के बाद, कौन से teenagers जिनमें ये idealism है that they can save the world, और इसके बाद Tishani Doshi is only saying all I can say is that a lot can happen in a million years. काफ़ी कुछ बदल सकता है million years में, but what a difference a day makes. But एक दिन से क्या फ़र्क पड़ता है. So this chapter is complete now, and it is all telling about the impacts of the environment. If the environment goes on depleting like this, one day the Antarctic ice sheets can melt also, and a totally complete change can come. Tishani Doshi is just concerned about all these things, and that's why she has told about her experience on going to this expedition, and she saw there the ice sheets melting and the role of the students, the high school students who are concerned about saving the world. So it gives us a message also to the human beings, to the readers also, to be concerned about the environment, to take care of the small things. जो ये जो लाइन आई थी, to take care of the small things, is that कि हम अपने अपने घरों में रहते हुए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, so that we should not deplete our environment. जो बड़ी चीज़ें हैं वो अपने आप ही अपने प्लेस पर फिट हो जाएंगी. So this chapter has given a quite wonderful message to us: save our planet Earth. Hope you have understood the chapter.